Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. This is Megha. Today we will be discussing about joints and the diseases related to your muscular and the skeletal system. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है joints and the diseases, isn't it? So this is the fourth video. Already I had uploaded 3 videos for you. Just have a look about that 3 videos also so that you can easily understand here what we are talking of. Okay, so let's start. First we will focus on the joints. तो पहले joints की बात करते हैं. So here comes the definition. सबसे पहले joint होता क्या है? तो joint is that place where two bones meet. ठीक है, जॉइंट वो जगह होती है जहां पे दो बोन्स मिलती हैं. ओके, सो वी कैन यूज another word for meet, that is articulate. This word I had used many times in the third video. Articulate means nothing but the meeting of the two bones. So where the two bones or three bones, where they meet, that place is called a joint. Right? Now, arthrology. Logy we had discussed. The meaning of the logy is study. ठीक है? So study of joints. Joints की study. Arthro means joint. तो joint की study को बोलते हैं arthrology. Isn't it? So what is joint? Joint is that point where two bones actually meet. Right? And the study of the joint is called arthrology. This is clear. Now we will focus on the 3 main types of joint which are present in our body, and they are the fibrous. First is fibrous, second cartilaginous, and third is the synovial joint. ठीक है? So these are the 3 types of joint. First one, fibrous. This is a joint which do not allow any movement. So wherever we have fibrous joint, no movement takes place at that place, and these joints are present in our skull. ठीक है? So in skull you will find these joints. These are fixed. Okay, we cannot move these bones, and this area is called sutures. Right? तो हमने देखे थे इन सब sutures के नाम क्या है, पहले थर्ड वीडियो में आप जाके देख सकते हो उसको. तो ये सूचर्स होते हैं, ये एक्चुअली फिक्स जॉइंट है विच वी कैन नॉट मूव एट ऑल. राइट? और आपने देखा था कि स्कल में कौन सी ऐसी 2 बोन है जो हम मूव कर सकते हैं. दैट इज द जॉ बोन एंड योर ईयर ऑसिकल, जो ईयर के अंदर बोन्स है. ओके, यही बोन्स है जो मूव करती है. अदरवाइज ऑल द बोन्स इन आवर स्कल आर फिक्स्ड. इजंट इट? नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड वन, दैट इज कार्टिलेजिनस. ठीक है, कार्टिलेजिनस में आप क्या देखेंगे कि थोड़ा बहुत मूवमेंट पॉसिबल है. स्लाइट मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इलास्टिक पैड्स दैट इज मेड अप ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज. ठीक है, सो इन द कार्टिलेजिनस जॉइंट स्लाइट मूवमेंट इज पॉसिबल. यहाँ पे थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा. रीजन इज दैट इलास्टिक पैड्स होते हैं फाइब्रो कार्टिलेज के. ठीक है, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू फाइब्रस जॉइंट में है. ओके, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू फाइब्रस जॉइंट में है, जिसकी वजह से ये जो जॉइंट्स हैं ये मूव नहीं कर सकते क्योंकि बहुत टफ होता है. फाइब्रो कार्टिलेज जो होता है दैट इज समहाउ प्लायबल, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है. ओके, सो हियर स्लाइट मूवमेंट टेक्स प्लेस. So let's see where are the cartilaginous joints present in our body. So here you can find that these are the vertebrae. ठीक है, ये हमारी vertebrae होती हैं. तो इनके बीच में ये जो डिस्क दिख रही है आपको, this disc is called intervertebral disc. ठीक है, this is the intervertebral disc. Okay, so ये जो डिस्क है ये कार्टिलेज की बनी हुई है. Because of this, a slight movement occurs. Because of this, we can bend backward and forward, right? And here also in the pubic symphysis, what is this? This is your
pelvic girdle, ठीक है, pelvic girdle है ये, कहाँ प्रेजेंट होता है, योर हिप रीजन। तो ये इसकी ये दो बोन्स होती हैं, ठीक है, ये जो दो बोन्स है यहाँ पे ये बीच में जुड़ी हुई हैं, ये दिख रहा है आपको। सो दे आर कनेक्टेड बाय pubic symphysis, okay, so they are connected over here by pubic symphysis. So this is what, this is nothing but the cartilage. So this is a cartilaginous joint. So this cartilage actually relax when there is a delivery of the baby, okay. So जब बेबी की डिलीवरी होती है ये थोड़ा कार्टिलेज रिलैक्स हो जाता है, so that baby can easily deliver, isn't it? So cartilaginous joint are present in your hip, that is pelvic girdle, as well as in the between of your vertebrae. वर्टिब्रे के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, वो है कार्टिलेज की, that is the cartilaginous joint. Now the third one, that is the synovial joint. This is very important because many around 6 types of synovial joints are present in our body that we will learn in detail, and this allow free movement, यानी कि यहाँ पे जो है पूरा अच्छे से मूवमेंट होगा। फाइब्रस में आपने देखा स्कल में कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं था क्योंकि वहाँ पे व्हाइट फाइब्रस टिश्यूज हैं। फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट में, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मूवमेंट प्रेजेंट है, ओके। एंड नाउ वी विल सी that in the synovial joint a free movement is possible, right? Now here first of all we will see that it is surrounded, देखो allow free movement, ये क्लियर है, पूरा अच्छे से मूवमेंट होगा इसमें, surrounded by tubular articular capsule. अब ये जो दो बोन्स हैं, suppose this is first bone and this is the second bone, ये दोनों बोन के बीच में यहाँ पे ये कैप्सूल होता है, okay, this is the capsule. Now this capsule actually contains two membranes. सबसे बाहर वाली जो है that is called fibrous layer, and inside fibrous layer there is a synovial membrane, ठीक है, there is a synovial membrane. This is the membrane which is going to secrete the fluid here, okay. तो हमारे joints के बीच में कौन सा fluid होता है, सिनोवियल फ्लूइड होता है ना। तो ये सिनोवियल फ्लूइड कौन सिक्रेट करता है, सिनोवियल मेम्ब्रेन ही सिक्रेट करती है, एंड दिस फ्लूइड एक्चुअली प्रोवाइड द ल्यूब्रिकेशन, ठीक है, दोनों जॉइंट के बीच में प्रेजेंट है तो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, एंड ऑल्सो रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। अगर ये नहीं होता तो हमारी बोन्स पास होती तो रगड़ती एक दूसरे में, फ्रिक्शन ज्यादा होता तो बोन्स डैमेज हो जाती, तो उससे ये हमें बचाता है, क्लियर। तो ये सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है जो फ्लूइड सिक्रेट करती है। तो बाहर वाली तो आपने देखा, देखिए फाइब्रस लेयर है, दिस आउटर लेयर इज द फाइब्रस, सिनोवियल मेम्ब्रेन ये अंदर वाली जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है दैट इज द सिनोवियल मेम्ब्रेन, दिस साइड एंड हियर आल्सो, isn't it? Now at the end of the bones there are cartilages, ओके, तो ये आपकी कार्टिलेजेस हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज बोल देते हैं भाई, जो दो बोन्स को ज्वाइन कर रही है एक्चुअली, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज हो गई, ओके। तो सबसे ज्यादा कार्टिलेजेस आर ऑफ थ्री टाइप की कार्टिलेजेस होती हैं, एक तो होती है हाइलेन, देन देयर इज अ फाइब्रस एंड इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। हाइलेन कार्टिलेज जो है हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाइलेन कार्टिलेज है, ये ग्लास जैसी लगती है देखने में, ग्लासी लुक। सो दिस इज योर कार्टिलेज, ये जो कार्टिलेज दिख रही है ब्लू कलर में, दिस इज एक्चुअली दी हाइलेन कार्टिलेज, ठीक है। तो ये हमारे एंड्स जहाँ पे भी हमारे बोन्स बीट कर रही हैं वहां पे ये कार्टिलेज आपको मिलेगी, ठीक है, कार्टिलेज का ऐसा पैड सा लगा हुआ मिलेगा, ओके, क्लियर है। सो व्हाट वी हैव सीन दैट इन द सिनोवियल जॉइंट देयर इज अ फ्री मूवमेंट, ठीक है, एंड इट इज सराउंडेड बाय आर्टिकुलर कैप्सूल। कैप्सूल हमने देख लिया, ये कैप्सूल था सेंटर में, कैप्सूल की दो लेयर है, ठीक है, 2 लेयर्स होती हैं, सबसे बाहर वाली फाइब्रस लेयर दैट वी हैव सीन फाइब्रस लेयर, और अंदर वाली होगी सिनोवियल मेम्ब्रेन, ओके। इनसाइड इसके नीचे जो है वो है सिनोवियल मेम्ब्रेन जो कि सिनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करेगी। दिस मच इज क्लियर। नाउ वी विल फर्दर मूव ऑन टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट। सो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल इन जॉइंट्स को याद करने से पहले हमें सारी बोन्स के नाम याद होने चाहिए, सो दैट वी कैन इजिली रिमेम्बर द जॉइंट नेम।
ओके तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप पिछले लेक्चर्स जो थे फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो जो भी हैं वो आप प्लीज विजिट करिए और अच्छे से लर्न करिए सो दैट यू कैन इजीली इन अ फ्लो यू विल लर्न व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखो बॉल एंड सॉकेट ये पहला, दूसरा हिंज और तीसरा पाइवट, ये बहुत इजी है लर्न करने। इलिप्सॉइड, सैडल और ग्लाइडिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो पहले हम इजी वाले पे फोकस करते हैं, है ना। पहले इजी चीज याद करो, टफ तो थोड़ा टाइम लगता है टफ चीज को याद करने में। तो पहले हम बॉल एंड सॉकेट की बात करें तो इसमें आपको क्या दिखेगा, आई विल शो यू। ये देखो बॉल जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक बोन के एंड में बॉल जैसा स्ट्रक्चर होगा और दूसरी बोन के पास ऐसा सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर होगा। ओके तो ये जो बॉल है इस सॉकेट में फिक्स हो जाएगी, ठीक है। और इसकी वजह से हमारा पूरा अच्छे से रोटेशन होगी। ओके so that is the ball and socket joint. So if we talk about a shoulder की अगर हम बात करें तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी स्कैपुला, जो पीछे बोन प्रेजेंट होती है। ओके जो शोल्डर ब्लेड है हमारा, शोल्डर ब्लेड इज हैविंग अ कैविटी, उसके पास एक कैविटी है जिसे बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है। लेट्स सी हियर आल्सो आई विल शो यू, दिस इज द ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है। ये आपका ब्लेड है, शोल्डर ब्लेड, ये ग्लिनॉइड कैविटी। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो बॉल जैसा, ये जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर है दिस इज प्रेजेंट इन योर ह्यूमरस बोन, ऊपर वाली हाथ की जो बोन है ह्यूमरस बोलते हैं। दिस ह्यूमरस इज फिक्स्ड इन द ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है। तो आप देख सकते हो स्कैपुला के पास क्या है, सॉकेट है, और ह्यूमरस के पास क्या है, बॉल है। तो बॉल एंड सॉकेट जैसा ये जॉइंट होता है, which this allow free movement. We can rotate our hand, okay, in a circular way. Second thing, it is also present in your hip, ठीक है। शोल्डर में प्रेजेंट है, then in your hip region, right? So here you can see this is a cavity. This cavity is called acetabulum, and in this cavity a head-like structure of the femur bone. Longest bone in our body is femur. पैर की जो थाई बोन है वो सबसे बड़ी बोन होती है। तो ये जो बोन है एसिटाब्यूलम, जो कैविटी है दैट इज प्रेजेंट इन योर pelvic girdle, उससे ये जुड़ जाता है। एंड दिस अलाउ फुल मूवमेंट, ओके, पूरा अच्छे से रोटेटरी मूवमेंट पॉसिबल होता है। देन इंक्यूडोस्टेबिडियल, दिस इज आल्सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ओके। दो तो आपको अच्छे से पता होता है बहुत से लोगों को, लेकिन ये तीसरा नहीं पता होता कि इंक्यूडोस्टेबिडियल जो जॉइंट है ये कहाँ प्रेजेंट है। आप बोन से ही आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट हो सकता है। देखो इंक्यूडो मतलब इंकस बोन की बात हो रही है, स्टेबिडियल मतलब स्टेपिस बोन्स की बात हो रही है। ओके सो यू नो अबाउट द ईयर बोन्स, मैलस, इंकस, स्टेपस, MIS, ये मैंने आपको याद कराया है। मिस से आप याद कर सकते हो मैलस, इंकस, स्टेपस, जो हमारे अंदर कान में मिडिल ईयर में 3 बोन प्रेजेंट होती है, मैलस, इंकस और स्टेपस। तो इंकस और स्टेपस के बीच में जो जॉइंट है, स्टेपस सबसे छोटी बोन है बॉडी की, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं इंक्यूडो स्टेबिडियल जॉइंट, ये जो जॉइंट है ये बॉल जैसा जॉइंट, ये सॉकेट है, ये इसमें जुड़ गया। तो यहाँ पे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है, क्लियर। तो दो तो आपको इजीली याद रहते हैं, ये थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। इंक्यूडोस्टेबिडियल इज आल्सो अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इजंट इट। बॉल एंड सॉकेट क्लियर हुआ। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड वन, दैट इज हिंज। हिंज में आप देखेंगे कि जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज इन वन डायरेक्शन, लाइक दिस इज माय आर्म, ओके। मैं इस आर्म को अपने आगे मूव कर सकती हूँ बट कैन नॉट मूव बैकवर्ड, पीछे नहीं जा सकता। ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक ऑलिगोरिथम प्रोसेस है जिसकी वजह से हम अपने हाथ को पीछे की तरफ नहीं ले जा सकते हैं, ओके। तो जैसे आप गेट खोलते हो तो एक ही डायरेक्शन में खोल सकते हो, दूसरी डायरेक्शन में नहीं। सो लाइक इन द सेम वे हिंज जॉइंट वर्क, ऐसे ही ये काम करता है, एक ही डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो, दूसरी डायरेक्शन पीछे को नहीं ले जा सकते हैं। सो हियर इन योर एल्बो हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट। इन योर एंकल, पैर में एंकल है, एंकल आप देखते हो अपने पैर को ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ऐसे मूव कर सकते हो, लाइक पीछे नहीं जा सकता आपका पैर ऐसे है, आप ऐसे ला सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट मूव बैकवर्ड। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द हिंज जॉइंट प्रेजेंट ओवर देयर। देन इंटरफैलेंजियल मतलब फैलेंजिस मतलब आपकी
फिंगर बोन्स, डिजिट्स जो होती है ना, फिंगर बोन्स, ये जो बोन्स है आपकी फिंगर में, चाहे वो पैर की बात कर रहे हो या हाथ की बोन्स की बात कर रहे हो, हाथ की फिंगर बोन्स की। सो फेलेंजेस मतलब ये जो फेलेंजेस है फिंगर बोन्स, ठीक है, इसके इंटरफेलेंजेस मतलब इनके बीच में जो जॉइंट है, आप अपनी फिंगर को ऐसे मूव कर सकते हो, बट यू कैन नॉट मूव बैकवर्ड, ये आपके पीछे नहीं हो सकते, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ द हिंज जॉइंट। सो इन बिटवीन योर phalanges you have hinge joint. Clear? Now move on to the pivot joint. Pivot joint में आप क्या देखोगे कि एक बोन तो सिलेंड्रिकल जैसी होगी और दूसरी बोन एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर उसके आसपास बना रही होगी। ये रिंग पूरी भी हो सकती है और ये रिंग ऐसी आधी भी हो सकती है, लाइक दिस, ठीक है। So let us see this pivot joint. I'll show you. देखिए, here is the video for you. अब हुआ क्या इस चीज में, ये देखिए, पहले हम बात करते हैं। देखो ये जो थी ये एटलस थी, जो हमने वर्टिब्रे की बात करी थी बैकबोन की, तो पहली जो वर्टिब्रे है उसको बोलते हैं एटलस। सेकेंड वर्टिब्रे होती है दैट इज एक्सिस, ठीक है। तो एक्सिस, ये आपको एक्सिस दिख रही है, दिस इज द एक्सिस, और आपका ये बीच में से जो निकल रहा है इसका अंदर से जा रहा है दिस वन, ओके। ये हमने बात करी थी ओडोंटॉइड प्रोसेस होता है, ठीक है। ओडोंटॉइड प्रोसेस किसके पास होता है, एक्सिस के पास, जिसकी वजह से हम नो बोल पाते हैं, राइट। सो दिस इज एक्चुअली द सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, दिस इज एक्चुअली सिलेंड्रिकल इन शेप। ओडोंटॉइड प्रोसेस कैसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और इसके चारों तरफ जो एटलस है पहली वर्टिब्रे, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस अ नो मूवमेंट इज पॉसिबल। सो दिस इज एक्चुअली द पाइवट जॉइंट, ये है आपका पाइवट जॉइंट। अब बिसाइड दिस, अच्छा इसका नाम कैसे आप याद रखेंगे, एटलांटा, एटलांटो एक्सियल, जो हमने बताया था कि ये एटलस है ये एक्सिस है, तो इन दोनों का मिला के ये जॉइंट मिल रहा है ना, पाइवट जॉइंट, इन दोनों को बोन को आर्टिकुलेट होके ये जो जॉइंट मिल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एटलांटो एक्सियल जॉइंट। क्लियर है, एटलांटो एक्सियल जॉइंट, एटलस बोन और एक्सियल बोन, एक्सियल बोन सॉरी। नाउ सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, देखो रेडियस दिस हियर, थंब की साइड जो है आपकी जो रेडियस है ये पूरी, और इस साइड में आपकी जो है वो है अल्ना बोन। रेडियस थंब की साइड होती है और अल्ना इस साइड होती है, ठीक है। अब आप इस हाथ को आप ऐसे घुमा सकते हो, है ना, लाइक दिस यू कैन डू, ये आपको ऐसे रखा है हाथ, तो आप ऐसे घुमा सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे अब ये जो बोन है अल्ना बोन, ये ऐसे घूम जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ पाइवट जॉइंट। तो यहाँ पे जो है ऐसा आधा रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, पूरा ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, आधा रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना रही है अल्ना, तो ऐसे ये घूम सकती है। Getting my point? So this is also a pivot joint. Superior and inferior radio ulnar. देखिए रेडियस और अल्ना के बीच में जॉइंट है, ठीक, इसे बोलेंगे रेडियो अल्नर जॉइंट। सुपीरियर इंफीरियर मतलब ऊपर, यहाँ पे भी सुपीरियर और इंफीरियर मतलब नीचे की तरफ, यहाँ पे ये भी आप ऐसे घुमा सकते हो ना, नीचे की तरफ का भी तो घूम रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे ऊपर और नीचे, सुपीरियर और इंफीरियर प्लेस पे यू हैव रेडियो अल्नर जॉइंट, और रेडियो जॉइंट एक्चुअली, एंड दिस इज द पाइवट जॉइंट, ठीक है, इसको पाइवट जॉइंट बोलते हैं। तो पाइवट जॉइंट क्लियर हुआ आपका, एक तो यहाँ पे है एटलांटो एक्सियल, ठीक है, एटलस और एक्सिस बोन के बीच में, और आपकी रेडियस अल्ना के बीच में। नेक्स्ट इज योर इलिप्सॉइड। बॉल एंड सॉकेट में आपने देखा कि बॉल जैसा स्ट्रक्चर था सॉकेट में फिक्स हो रहा था, इलिप्सॉइड में देखेंगे कुछ कुछ ये समवॉट बॉल एंड सॉकेट जैसा ही सिमिलर जैसा होता है, बट इसमें आपकी शेप होगी इलिप्सॉइड जैसी होगी, ठीक है। बॉल और सॉकेट जो होगा वो थोड़ा इलिप्सॉइड शेप का होगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो
जैसे अर्थ की शेप होती है इलिप्टिकल, राइट, तो दैट इज द शेप, not fully rounded but it is somewhat elliptical. Now here we will see at the end of your finger bones. फिंगर बोन्स ये हैं इसके यहाँ, ऐसे ही आपकी टो की जो फिंगर बोन्स हैं उसके बिल्कुल नीचे जो जॉइंट मिलेगा वो है इलिप्सॉइड. ओके, वो है इलिप्सॉइड. सो लेट अस लर्न द नेम. फेलेंजियल, देखो मेटाकार्पल फेलेंजियल, मेटाटार्सो फेलेंजियल. मेटाकार्पो हो गई आपकी पाम की बोन, और ये आपकी डिजिट्स होती है, ये होगी फेलेंजेस. मेटाकार्पो फेलेंजेस. ओके, मेटाकार्पल फेलेंजेस के बीच में जो जॉइंट है दैट इज द इलिप्सॉइड जॉइंट. उसका नाम हो गया मेटाकार्पो फेलेंजियल. मेटाकार्पल और फेलेंजेस के बीच में. ऐसे ही मेटाटार्सल और फेलेंजेस के बीच में, मेटाटार्सल आपका पैर फुट वाला जो पोर्शन हो गया, फेलेंजेस आपकी फिंगर बोन्स हो गई, उसके बीच में. क्लियर? दैट इज द इलिप्सॉइड. नाउ लेट अस सी द इमेज. सो हियर यू कैन सी मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट. देखो ये आपकी डिजिट्स हैं 1 2 3. ठीक है, हर एक फिंगर में 3 बोन होती है, थंब में 2 होती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर द मेटाकार्पल्स. ये मेटाकार्पल्स है. Here you can see this is actually not actually rounded, it is somewhat elliptical structure, and this is socket. This is rounded structure, ball जैसा, मतलब not perfectly circular but elliptical. ये हो गया इसका socket. So this is the ellipsoid joint. कौन सा joint है ये? ellipsoid. ठीक है, ऐसे ही आपको मेटाटार्सोफेलेंजियल मतलब आपकी जो टो की बोन्स हैं, फिंगर बोन्स, और आपका जो फुट है उसके बीच में जो मिलेंगी, जो जॉइंट मिलेगा वो है इलिप्सॉइड. क्लियर? नाउ नेक्स्ट हियर वी विल सी इन द रेडियोकार्पल. रेडियो मतलब रेडियस बोन. ठीक है, ये रेडियस बोन थी आपकी, रेडियस, और यहाँ पे कार्पल्स. ठीक है, छोटी छोटी बोन्स होती है लिस्ट में, कार्पल्स. तो रेडियस और कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट है दैट इज द इलिप्सॉइड जॉइंट. ठीक है, तो आप इसकी वजह से अपने हाथ को ऐसे घुमा सकते हैं बिकॉज ऑफ द इलिप्सॉइड जॉइंट. ओके, आप इससे बैक फोर्थ मूवमेंट भी पॉसिबल है, साइड टू साइड मूवमेंट भी पॉसिबल है, बट जो रोटेटरी मोशन है, जो हम ऐसे रोटेशन हो रहा था बॉल एंड सॉकेट की वजह से कंप्लीट रोटेशन हो रहा था, वो कंप्लीट रोटेशन नहीं हुआ इलिप्सॉइड में. ठीक है, बट थोड़ा बहुत होता है रोटेशन. Clear? So here I am talking of the radiocarpal. ठीक है, तो ये आपकी जो रेडियस बोन है, ये आपकी कार्पल्स बोन है. देखो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि कार्पल्स कौन सी है, मेटाकार्पल्स कौन सी है. तो कार्पल्स तो होती है रिस्ट. देखो नाम छोटा है, मेटाकार्पल्स का नाम बड़ा है, तो छोटी छोटी बोन्स है वो तो वही कार्पल, छोटा नाम छोटी बोन्स. क्लियर? मेटाकार्पल्स थोड़ी लंबी होगी, है ना. ये जो आपकी जो बोन्स है ये मेटाकार्पल्स होती है यहाँ पे सारी, तो ये थोड़ी लंबी बोन्स होती है. छोटी छोटी बोन्स रिस्ट में होती है, कार्पल्स आर द रिस्ट बोन्स. सो हियर यू कैन सी दिस इज योर रेडियस. ये आपकी रेडियस है, ये कार्पल्स है. तो यहाँ पे ये जो आपको जॉइंट दिखेगा, दिस जॉइंट इज द इलिप्सॉइड जॉइंट. क्लियर? नेक्स्ट इज योर एटलांटो-ऑसिपिटल. एटलांटो मतलब एटलस बोन, है ना, ये होगी आपकी एटलस. occipital bone we have discussed that in the skull at the back side we have a occipital bone. okay, occipital में 2 condyles होते हैं, 2 condyles एटलस से अटैच होते हैं, ऐसे अटैच हो जाते हैं, आर्टिकुलेट हो जाते हैं, है ना. तो let's see, I have an image. yeah, here is the image. you can see this is या एटलस बोन. ये आपकी एटलस बोन है पूरी, ये आपकी एटलस बोन है. ये आपकी एक्सिस बोन है जिसका ये प्रोसेस दिख रहा है आपको, ओडोंटॉइड प्रोसेस है ये, है ना, जिसके वजह से आप नो बोल पाते हैं. यहाँ पे ये जो जॉइंट दिख रहा है आपको, ये आपकी ऑक्सीपिटल बोन है. दिस इज द प्लेस वेयर द अटैचमेंट इज टेकिंग प्लेस. ठीक है, तो ये जो कॉन्डाइल्स होते हैं जो हमारे इस ऑक्सीपिटल बोन से निकल रहे हैं, वो यहाँ पे एटलस बोन से आर्टिकुलेट हो जाते हैं. क्लियर? So our skull is the dicondyle, right?
So atlanto-occipital is also a ellipsoid joint, right? तो आपको बोन्स के नाम याद होने चाहिए, तभी आप एक्चुअली ये जो जॉइंट है इनको इजीली याद कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैडल जॉइंट की। सैडल जॉइंट में आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस मिलेगा, ठीक है। कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस आपको इस टाइप का सरफेस मिलेगा, जैसे आप हॉर्स की जो सीट लगा देते हैं उस पर बैठते हैं, उसका भी ऐसे ही सरफेस होता है कुछ, वहीं से ये नाम आया है सैडल। सो हियर वी विल सी सैडल कहाँ कहाँ मिलेगा, इंक्यूडोमेल्यूलर, सबसे बढ़िया इन ईयर में पहुंच जाइए आप, ठीक है। ईयर में आपने अभी देखा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट था, ठीक है, किसके बीच में, इंकस और स्टेपिस के बीच में। लेकिन इंकस और मेलस के बीच में जो जॉइंट है, दिस इज जॉइंट, ये तो इंकस है, ये है आपकी मेलस, ठीक है, हैमर जैसी लगती है, मेलस है। सो दिस जॉइंट इज इंक्यूडोमेल्यूलर जॉइंट, इंकस और इस मेलस के बीच का जो जॉइंट है दैट इज इंक्यूडोमेल्यूलर जॉइंट, क्योंकि ये समहाउ इट इज मेकिंग द सैडल शेप। So this is the इंक्यूडोमेल्यूलर जॉइंट, सैडल जॉइंट है। देन स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है, क्लेविकुलर, ये भी आ रहा है क्लेविकुलर, अभी इन दोनों में बात करेंगे, स्टर्नम और एक्रोमियो। स्टर्नोक्लेविकुलर और एक्रोमियो क्लेविकुलर। सबसे पहले क्लेविकुलर कौन सी बोन है, ये आपकी जो है आपकी कॉलर बोन, ओके, हियर वी हैव अ कॉलर बोन। ये कॉलर बोन आगे जुड़ी हुई है ब्रेस्ट बोन से, स्टर्नम से, है ना, स्टर्नम से जुड़ी हुई है। सो दिस इज द स्टर्नम, ठीक है, ये आपकी स्टर्नम है। और ये जो है कॉलर बोन आगे जुड़ी हुई है स्टर्नम से, और पीछे जुड़ी होती है ये आपकी जो स्कैपुला है, स्कैपुला के पास एक एक्रोमियन प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस निकला होता है ऐसे आउटग्रोथ सी होती है, इसे बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। तो कॉलर बोन आगे स्टर्नम से जुड़ी है और बैक साइड में ये जुड़ी है एक्रोमियन प्रोसेस से, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये जो आगे जुड़ी हुई है स्टर्नम से, वहां ये बना रही है सैडल जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर, यानी कि ये जो जॉइंट है, ये वाला जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट है ये सैडल है। एक्चुअली इस फिगर में अच्छे से नहीं दिखाया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो कैविटी से दिखती है कॉनकेव कॉन्वेक्स टाइप की कैविटी है, ये दिखती है आपको, है ना, उठा हुआ है, फिर अंदर गड्ढा है, उठा हुआ है और गड्ढा है ना। तो ये जो कैविटी है एक्चुअली दैट इज द सैडल टाइप ऑफ कैविटी, ओके। सो दिस हियर आगे तो ये जो कॉलर बोन है क्लेविकल, ये कॉलर बोन है, आगे स्टर्नम से जुड़ी है, ये स्टर्नम है, आगे स्टर्नम से जुड़ी है, कौन सा जॉइंट है ये, दिस इज द सैडल जॉइंट, और पीछे की तरफ एक्रोमियन प्रोसेस से ये जुड़ी होती है। सो एट द बैक साइड इज मेकिंग ग्लाइडिंग जॉइंट, ओके, यहाँ पे ये ग्लाइडिंग जॉइंट बना रही है, यानी कि ग्लाइडिंग, देखो ग्लाइडिंग बिल्कुल प्लेन जॉइंट होगा, ऐसे प्लेन सरफेस होंगे तो जो एक दूसरे जुड़े हुए। सो हियर यू कैन सी दिस आर द प्लेन सरफेसेस, दिस इज द ग्लाइडिंग जॉइंट, ओके। तो याद रहेगा क्लेविकल जब स्टर्नम से जॉइंट बनाती है तो सैडल होता है, स्टर्नम से सैडल याद रहेगा, और अगर एक्रोमियन प्रोसेस से बना रही है तो दैट इज द ग्लाइडिंग जॉइंट। देन कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, कार्पो, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, दीज आर योर मेटाकार्पल्स, कार्पल्स छोटी छोटी बोन रिस्ट की, मेटाकार्पल्स पाम बोन, इसके बीच में ये जो जॉइंट है ये है सैडल जॉइंट, ठीक है। सो दिस इज द कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ये कार्पल्स और यहाँ पे ये जॉइंट है, कॉनकेव कॉन्वेक्स टाइप की कैविटी सी होती है जिसकी वजह से इसको सैडल जॉइंट बोलते हैं, ओके, कार्पो मेटाकार्पल। नाउ ग्लाइडिंग जॉइंट, अभी मैंने एक तो बता दिया एक्रोमियो क्लेविकुलर, दूसरा होता है कॉस्टो वर्टिब्रल, कॉस्टो मैंने बोला रिब्स का नाम, रिब्स से रिलेटेड है। वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रिब्स पीछे वर्टिब्रल से जुड़ी हुई है, आगे तो स्टर्नम से जुड़ी हुई है, बैक साइड में वर्टिब्रल से जुड़ी हुई है, तो जो पीछे की तरफ ये जुड़ती है वर्टिब्रल से, तो ये जो जॉइंट बनाती है यहाँ पे, ये एक्चुअली होता है ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, क्लियर। So we have seen the 6 major type of synovial joint present in our body: ball and socket, hinge,
pivot, ellipsoid, saddle, and decline. Okay, I hope everything is clear to you. If there is a problem in any joint, you can comment me. Okay, I will give you an answer. Now further we will move on to the disorders. ठीक है, अब हम बात करते हैं disorders of the muscular and the skeletal system. First disorder is the myasthenia gravis. Okay, myasthenia gravis में क्या होता है कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, let us see, suppose this is the neuron, this is the motor neuron जो हमारी इंफॉर्मेशन ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से लेके आया है और इट इज गिविंग द इंफॉर्मेशन टू अवर मसल. ठीक है, ये हमारी मसल को इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो यहाँ पे जो जंक्शन है, दिस जंक्शन इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल्स. ठीक है, न्यूरॉन और मसल्स के बीच का जो गैप है, दैट इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. सो मोटर न्यूरॉन और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का जो कम्युनिकेशन है वो हो जाता है खराब. ओके, तो myasthenia gravis में ये जो जंक्शन का बीच में कम्युनिकेशन है वो हो जाता है खराब. कैसे खराब हो जाता है, लेट अस सी. सो दिस इज द मोटर न्यूरॉन. ये आपका मोटर न्यूरॉन आ रहा है इंफॉर्मेशन को लेके. इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है. दीज आर द वेसिकल व्हिच कंटेन्स द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन. ओके, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन. एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया है और दिस इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द मसल्स. ये आपकी मसल है, यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं, एसिटाइलकोलिन को रिसीव कर लेते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है. ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है. अगर ये रिसेप्टर्स खराब हो जाए, ठीक है, यानी कि ये एक्चुअली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. myasthenia gravis इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. इट मीन्स हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो हमारी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही हैं. ओके, तो कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बन रही हैं जो इन रिसेप्टर्स को खराब कर रही हैं या डिस्ट्रॉय कर रही हैं. ठीक है, ये जो रिसेप्टर्स आप देख रहे हैं इसके ऊपर आके कुछ एंटीबॉडीज लगी हैं. दे आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द रिसेप्टर्स. तो रिसेप्टर्स जब खराब हो जाएंगे तो एसिटाइलकोलिन कितना भी रिलीज हो जाए वो हमारे मसल्स के अंदर नहीं जा सकता, रिसीव ही नहीं होगा क्योंकि हमारे रिसेप्टर्स ही खराब हो गए हैं. सो दैट इज द प्रॉब्लम कॉल्ड myasthenia gravis. So what will happen? Abnormal weakening and rapid fatigue of certain muscles. तो हमारी बॉडी की जो मसल्स है वो धीरे धीरे वीक होती जाएंगी, फैटिग हो जाएंगी और आपने देखा होगा कुछ कुछ ऐसे चेहरे लटक जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस myasthenia gravis. ओके, क्योंकि उन मसल्स को सिग्नल ही नहीं मिलता कॉन्ट्रैक्शन का. ओके, so why is it happen? Because the breakdown in the communication between nerves and muscles. Okay, तो nerves और muscles के बीच में जो communication हो रहा है वो टूट जाता है. That is myasthenia gravis. Clear? Now move on to the second one, muscular dystrophy. Muscular dystrophy is the hereditary disease. ठीक है, तो यहाँ पे आप जो जीन बनेगी वो जीन इज द डिफेक्टेड जीन. ये डिफेक्टेड जीन बन जाएगी. डिस्ट्रॉफी से आप याद रखेंगे कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बन रहा है और ये जो प्रोटीन है जो सार्कोलेमा होती है, मेम्ब्रेन, ठीक है, मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा, इसको स्टेबल करने में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है. एक्टिन मायोसिन आपने देखा कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं. ऐसे ही ये एक और प्रोटीन है डिस्ट्रोफिन विच हेल्प्स टू स्टेबलाइज द सार्कोलेमा मेम्ब्रेन. और यही नहीं बनेगा तो जो सार्कोलेमा है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हमारी स्केलेटल मसल ही खराब होती जाएगी, डिस्ट्रॉय होती जाएगी. सो जब मसल ही नहीं रहेंगी तो हाउ कैन वी इनहेल, क्योंकि हमारे रिब्स के बीच में भी मसल्स हैं. एवरीवेयर वी हैव मसल्स. मसल्स आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो व्हाट विल हैपन, जब मसल्स ही नहीं है, सांस नहीं ले पाएगा इंसान, सांस नहीं ले पाएगा तो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी. सो पर्सन विल डाई एट द एज ऑफ 20 साल तक आसपास वो डेथ हो जाती है पर्सन की. So why? Because there is a degeneration of the skeletal muscle. तो जितनी भी skeletal muscles होती हैं वो degenerate होती जाती हैं. Right? तो dystrophin protein जो है वो बहुत important होती है sarcolemma को stable करने के लिए. Sarcolemma actually it is the plasma membrane of the muscle cell. Right?
क्लियर? तो दिस इज द हेरिडिटरी प्रॉब्लम, ये हेरिडिटरी है यानी कि एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है ये। Okay, now we will move on to the next one, that is tetany. Tetany or tetanus, little bit somehow similar से नाम है, but there is a difference between the two. Tetanus actually caused by bacteria Clostridium tetani. ठीक है, ये एक बैक्टीरिया से होती है। सो व्हेनेवर वी हैव डीप वुंड, कहीं भी हमारा कट लग जाए गहरा, तो उसमें क्या होता है, जो स्पोर्स वगैरह जो होते हैं एयर या सॉइल में, आयरन में एक्चुअली, तो वो स्पोर्स अंदर चले जाते हैं और वो स्पोर्स क्या करते हैं, हमारी जो मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब फिर वो रिलैक्स नहीं हो पाती है, कॉन्ट्रैक्ट की रह जाती हैं। सो वी कैन से दैट sustained contraction happens, and this is also called lockjaw disease. जॉ जो है वो लॉक हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे मसल्स का अटैक होता है, जिसकी वजह से ये जो जॉज है वो लॉक हो जाते हैं, इंसान खोल नहीं पाता अपने जॉज को। So that is because of the bacteria tetany, Clostridium tetani. But tetany की बात करें, so that is because of the low blood calcium. ठीक है, suppose this is our blood vessel. ब्लड वेसल में कैल्शियम जो होता है, here you know that कैल्शियम ब्लड का कौन सा हार्मोन इंक्रीज करता है, that is the पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन हमने देखा था कि थायराइड ग्लैंड के पीछे 4 छोटे छोटे पैराथायरॉयड हार्मोन्स, पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं, वो पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिसका काम होता है ब्लड की जो कैल्शियम है उसको इंक्रीज करना। तो समहाउ अगर सपोज हमारा पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो हमारा हार्मोन नहीं बन रहा अच्छे से, पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं बन रहा अच्छे से, तो ब्लड की कैल्शियम क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, है ना। दैट ब्लड की कैल्शियम कम होना मतलब हाइपो कैल्सियमिक कंडीशन। ओके, हाइपो मतलब लेस, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम हो गया कैल्शियम इन द ब्लड। सो बिकॉज ऑफ दिस वी हैव वाइल्ड स्पाज्म मतलब कंट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रैक्शन बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं, कंट्रैक्शन बहुत जल्दी जल्दी फास्ट वाइल्ड कंट्रैक्शंस। So that is because of the low blood calcium, and low blood calcium can be one of the major cause of this is the defective parathyroid gland. ठीक है, there is a problem in the parathyroid gland due to which parathyroid hormone is not secreted in our body properly, and because of that there is a low calcium level in our blood. Right? Now we will further move on to the osteoporosis. Porosis मतलब ऐसे याद रखिए पोर हो जाते हैं, osteo मतलब बोन्स में। ठीक है, so suppose this is our bone, and in this bone actually it is a age related disorder. ठीक है, it increases with the age, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी और ये प्रॉब्लम हो सकती है, and actually it is major in females में ज्यादा होती है। there is a reason we will see। देखो यहाँ पे जो ये बोन है इसमें अगर पोर्स होते जाए, छन्नी हो जाए, एक तरह से छन्नी बन गई है बोन। ठीक है, so just a second. So what will happen, actually the bones become fragile। ठीक है, बोन कैसे होगी, फ्रेजाइल हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, और इट विल ब्रेक। ठीक है, फ्रेजाइल हो गई, कमजोर हो गई, कभी भी हम एज के अकॉर्डिंग अगर सपोज हमारी दादी नानी जो भी है स्लिप हो जाती है, तो यू कैन से फ्रैक्चर हो जाता है बहुत जल्दी, जस्ट बिकॉज बोन्स जो है फ्रेजाइल हो गई है। ओके, बोन्स बहुत कमजोर हो गई है, हाल हो जाएगी। राइट, सो वन ऑफ द रीजन ऑफ दिस इज द लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। ओके, जैसे ही एज बढ़ती जाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है फीमेल्स में, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स 45 to 50 एज में स्टॉप हो जाती है। सो एस्ट्रोजन का लेवल जो है बॉडी में कम हो जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल कम जब हो जाएगा, एक्चुअली एस्ट्रोजन आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग बोन्स एंड मसल्स, नॉट मेकिंग, एक्चुअली in the growth of bones and muscles, right? So it is having anabolic effect। ठीक है, छोटी छोटी चीज को बड़ी चीज बना देना, तो that is anabolic effect। So it is helping in the growth of the bones and the muscles, right? So if this level drops, what will happen? There is a problem
means it will cause a fragile bone, and excessive resorption of calcium and phosphorus from the bone is also a common cause. सपोज इस बोन से, ये जो ब्लड वेसल है इसमें कैल्शियम एब्जॉर्ब होता जाए, बोन का कैल्शियम सारा ब्लड में आता जाए, तो क्या होगा, बोन्स में कैल्शियम जा रहा है, बोन्स का कैल्शियम कम हो रहा है, तो बोन्स में क्या हो जाएंगे, कोर्स हो जाएंगे, मीन्स बोन्स कमजोर हो जाएगी, फ्रेजाइल हो जाएगी, isn't it? So that is the problem called osteoporosis. So the chances of contracting this disease increases with the age. age के साथ ये disorder जो है इंक्रीज होता जाता है, रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड बोन मास, जो बोन का जो मास है वो कम हो जाएगा, देख सकते हैं पोर होते जा रहे हैं तो बोन का मास कम हो रहा है, एंड फ्रेजाइल बोन्स हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगे, दस इंक्रीजिंग चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर की चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे ऑस्टियोपोरोसिस में। एंड द कॉजेज आर लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कम हो की वजह से हो सकती है, एंड एक्सेसिव रिसॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम द बोन्स। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम और फॉस्फोरस अगर एब्जॉर्ब हो जाएगा बोन से तो बोन्स फ्रेजाइल हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट डिजीज इज द आर्थराइटिस। Arthritis is the problem of the joints. Okay, inflammation of joints. Joints में swelling आना, सूजन आना, है ना, ये सब प्रॉब्लम जो joints में आ जाती हैं, ठीक है, that is actually the arthritis problem. Arthritis leads to limited movement. इसमें बहुत कम movement होगा joints में, मतलब joints में जो arthritis हो गया तो जो movement हो रहा है वो कम होगा, और it will lead to pain. ठीक है, दर्द होगा joints में. So let us see the different type of arthritis. There are many different types of arthritis. Here we will focus on the four main type of arthritis, and they are the rheumatoid. Rheumatoid is actually the inflammation of the synovial membrane. So this is an autoimmune disorder. Okay, it is an autoimmune disorder. होता क्या है rheumatoid arthritis में, synovial membrane जो है धीरे धीरे degenerate हो जाती है। ठीक है, हमने देखा सिनोवियल मेम्ब्रेन, ये रही सिनोवियल मेम्ब्रेन, बाहर थी फाइब्रस लेयर, ठीक है, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो सिनोवियल मेम्ब्रेन है, ये सिनोवियल मेम्ब्रेन जो थी वो फ्लूइड सिक्रीट कर रही थी, सिनोवियल फ्लूइड, तो सिनोवियल मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगी तो सिनोवियल फ्लूइड नहीं रहेगा, सिनोवियल फ्लूइड नहीं रहेगा तो धीरे धीरे कार्टिलेज खराब होने लगेगी, वो तो आगे की कहानी है। ठीक है, तो मेन जो रीजन है इन्फ्लेमेशन ऑफ सिनोवियल मेम्ब्रेन है, यानी कि सिनोवियल मेम्ब्रेन जो है इन्फ्लेम्ड हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है, because of this there is a problem in the joints. Then there is a osteoarthritis. Osteoarthritis इसमें जो है कार्टिलेज का इरोजन होता है, इरोजन ऑफ द कार्टिलेज। तो वी हैव सीन जब बोन की एंडिंग्स में क्या है, कार्टिलेज है, पूरी कार्टिलेज है, बोन की एंडिंग्स में हमने देखा ना कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। सो इफ दिस गेट्स एक्सप्लोडेड और इरोडेड, है ना, अगर यही इरोडेड हो जाएगी, इरोजन हो जाएगा, तो ये कार्टिलेज का, अगर ये कार्टिलेज ही खत्म हो जाएगी तो बोन्स पास आ जाएंगी, बोन्स पास आने की वजह से बोन्स में फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से बोन्स जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट टूट के यहाँ आ जाएंगे, और दे विल कॉज पेन, दे विल कॉज अ लॉट ऑफ पेन। ठीक है, बोन जो है धीरे धीरे घिसने लगेगी एक्चुअली। So this is the osteoarthritis. Then infectious. It is actually because of the microorganism. ठीक है, कुछ microorganisms यहाँ पे enter कर जाते हैं joints में, that will cause inflammation, swelling वगैरह cause कर देते हैं. Then next one is the gout. It is due to the accumulation of uric acid crystals. यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बनता है और निकलता रहता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, लेकिन जब ज्यादा बन जाता है, यूरिक एसिड कब बनता है, इट इज एक्चुअली ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन्स। प्यूरिन्स और प्रीमिडिन्स पढ़ा है आपने, तो एडेनिन और ग्वानिन और प्यूरिन्स, इनके ब्रेकडाउन की वजह से यूरिक एसिड बनता है। दिस यूरिक एसिड गेट एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन, but if it is formed in large amount in our body, so this uric acid will get and stored at the joints, between the joints. तो यहाँ पे सपोज ये जॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टोर हो जाएगा, क्रिस्टल्स इसके स्टोर हो जाएंगे यूरिक एसिड के, और जिसकी वजह से वी कैन नॉट मूव प्रॉपरली, दैट कॉजेस पेन आल्सो, राइट। तो बहुत ज्यादा ये जब बढ़ जाते हैं तो बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, अजीब सा स्ट्रक्चर हो जाएगा जॉइंट्स का, राइट। सो दिस इज द गाउट प्रॉब्लम, इट इज एक्चुअली द inflammation of joints only, so it is
part of arthritis, right? So we have seen rheumatoid arthritis जिसमें synovial membrane खराब हो रही है, ऑस्टियो में कार्टिलेज खराब हो रही है, इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, और जो गाउट है दैट इज बिकॉज ऑफ द deposition of the uric acid in between the joints. Okay, so we have seen these diseases. Myasthenia gravis में हमने देखा एंटीबॉडीज ऐसी बन रही थी जो रिसेप्टर्स को ही डिस्ट्रॉय कर रही थी. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में देखा था कि डिस्ट्रॉफिन जो प्रोटीन है वो नहीं बन रहा, जो कि सार्कोइडोमा मेम्ब्रेन को स्टेबल करने के लिए बहुत जरूरी होता है. टिटेनियम में हमने देखा कि ब्लड कैल्शियम गिर गया है जिसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है. ओस्टियोपोरोसिस में देखा था कि बोन्स में पोर्स हो जाते हैं, फ्रेजाइल हो जाती है बोन. ठीक है, तो फ्रैक्चर जल्दी हो जाते हैं, राइट? So this is all about today's video. Thank you for watching. Okay, so please don't forget to subscribe my channel and also hit the bell icon so you will get the update, because on the daily basis I am uploading 1 or 2 videos. जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं 1 या 2 वीडियो अपलोड कर देती हूँ, और within 1 or 2 days I am uploading 1 or 2 videos, right? So please subscribe to my channel. It is very important for NEET and AIIMS exam. Actually जो NEET के लिए थोड़ा मैंने ज़्यादा डिटेल में पढ़ा दिया है. जो NEET के वाले बच्चे हैं वो उतना ही कवर करें जितना उनके लिए ज़रूरी है. No need to go in too much detail. Okay, and please hit the like button. Thank you for watching.